Hello my dear friends, welcome to Breakthrough Video Tutoring, and today we'll be starting the second topic of class 10th chemistry, that is acid, bases and salts. Normally when I ask many of you to name few acids or few bases and even few salts, students have a quick answer, like they have some names like acids. A very common name is hydrochloric acid, and they give me the formula also, that is HCl. It is right or wrong, we'll be seeing it. When I ask few more examples, they say that is sulfuric acid, and they give me the formula H2SO4. Some of them give the example of nitric acid and they give the formula HNO3. That's pretty good. And many of them give the example of citric acid and tartaric acid and malic acid, many more acids which are present in food, acetic acid. And when it comes to base, they give me the example of sodium hydroxide like NaOH, they give me this formula. Potassium hydroxide, they write KOH. Magnesium hydroxide, they give MgOH whole twice. That's pretty good of them. Even some of them, they say that acids are sour, bases are bitter, their color, their appearance they give. But let me tell you very frankly that in this class 10 we will be learning much more than this. This is somewhat a very common, very mundane knowledge we can say. तो हम इस सेशन में इन क्लासेस में 10th के जो भी लेसन्स इसके होंगे उनमें बहुत सारी चीज़ें एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट से रिलेटेड डिटेल में स्टडी करेंगे. एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. क्लास 10th में कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे और बाकी हायर क्लासेस में. लेकिन टू स्टार्ट विद आई हैव फ्यू क्वेश्चंस अगेन, देन वी कैन कंटिन्यू फर्दर. I hope you understand what it is. It's very simple, and there are two more terms as they are in front of you. When I ask student what are these, they name it like is fine, this is water. The second one they don't know, or many of them if they know they say it is hydrogen ion, and the third term H3O plus, ये सबको नहीं पता होती. तो they normally say कि हमें इसका नाम नहीं पता. So let me tell you, this is hydronium ion. So this is water, this is hydrogen ion, and H3O plus is hydronium ion. Is this okay? This is hydronium ion. Okay, fine. So let's start to understand the concept behind this, what exactly it is. Water molecule, as you might have seen, if we know what kind of bonding water molecule has, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. It is formed of hydrogen and oxygen. The covalent structure of water is like this, with two lone pairs of electron. I hope you understand how this is formed. Hydrogen has only one electron in its outermost shell, and ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आई होप आपको पता होगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. सो दिस हैज 2 and 6 electron in its outermost shell. So one is here, second is here, and these are those 4 electrons. In water molecule we have one more hydrogen atom. So this is one more hydrogen atom with this electron, and the sharing of electron takes place like the hydrogen shares its electron in this fashion, duplet completing its duplet. And oxygen completes its octet by sharing the 2 electrons of hydrogen in this fashion. So this will be the first bond, this will be the second bond. As you can see here, these are the 2 bonds, and these are the 2 lone pairs. Okay, this is the first thing that we have to understand. Now when it comes to this hydrogen ion, or we can simply call it a proton. Why we call it a proton only? Let's see. Hydrogen has atomic number what? Hydrogen has atomic number 1, which says this is the nucleus with a proton and electron revolves around it. Okay, it means it has 1 proton and 1 electron. It has no neutron, it is neutronless. So when I say I have to form hydrogen ion, I have to lose 1 electron. This hydrogen atom has to lose 1 electron, and by losing 1 electron it forms this. So if this entire shell is lost and only a proton is left. So when I say hydrogen ion, so this is
electronless, no electrons, it has no electron. Garib, in a funny way. Okay, now assume कि this hydrogen ion who seeks electron, उसको electrons की जरूरत है, this seeks electron, तो वो electron के लिए किसी electron rich species के पास जाएगा. So where to seek those electron? by chance ये हाइड्रोजन कहाँ है, इस वाटर के अंदर प्रेजेंट है. माई चांस ये वाटर के अंदर आ गया, तो वाटर के अंदर आते ही इट कैन सीक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन. कैन यू सी दैट? नाउ दिस इज हाइड्रोजन, इट इज द सेम, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसके पास है. आपको नहीं लगता ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से, इस हाइड्रोजन आयन की बात कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन क्या इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स पेयर से अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश नहीं कर सकता? इन दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता? बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, तो इनके बीच में एक म्यूचुअल एसोसिएशन शुरू हो जाता है, विच अपीयर्स लाइक दिस. हाइड्रोजन, दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो शेयर्ड पेयर था इसको ऐसे बॉन्ड से दिखाया है, ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये दो पेयर में से एक पेयर तो ऐसा ही है, और ये जो एक पेयर था ये इसको एज अ लोन दे दिया गया है यहाँ, ये इसको एज अ लोन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे इस वाले हाइड्रोजन के पास, तो इट बोरोज, ठीक है ना, पूरा एक पेयर इन दोनों की, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम एक पूरा पेयर चाहिए. देखिए आप, ये दो मिलके इलेक्ट्रॉन्स और एक पूरा पेयर बनाते हैं. तो ये जो बॉन्ड है ना, ये वाले तो बॉन्ड क्या है, ये वाले बॉन्ड्स तो कोवेलेंट बॉन्ड्स है. दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स. ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है. ये शेयरिंग हो रही है, देखो आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ शेयरिंग नहीं है, ये वन साइड का हेल्प है, सॉर्ट ऑफ हेल्प. ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चलेंगे, तो ऑक्सीजन के पास क्या होगी, डेफिशिएंसी, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सो व्हेन आई राइट H3O+, द पॉजिटिव चार्ज इज लाइंग ऑन व्हाट, ऑक्सीजन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन. स्टूडेंट्स अब क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज दिस ऑल? ये वो बेसिक बिगिनिंग है जिससे आपको आगे का चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. लेट्स स्टार्ट अगेन, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं. दिस इज वाटर, जिसके बारे में बात हुई थी स्टार्टिंग में, ओके. और वाटर लुक्स लाइक दिस, और ये स्ट्रक्चर इस वाटर का है, ये हमने देख लिया. अब दूसरी बात हुई हाइड्रोजन आयन की. व्हाट एग्जैक्टली इज हाइड्रोजन? हाइड्रोजन आयन ऐसा है, और ये हाइड्रोजन आयन कैसे बना, ऐसा इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये ठीक है ना. और ये इलेक्ट्रॉन लेस, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन. और ये हमारे उस रीजनिंग को सपोर्ट करता है कि हाइड्रोजन क्यों वाटर के पास जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा. और ये अट्रैक्शन जो है ऑक्सीजन को वन साइडेड शेयरिंग में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो वन साइडेड शेयरिंग में कुछ इस तरह से यहाँ पर एसोसिएशन देगा. और इस एसोसिएशन की वजह से जो एक बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और ये पूरी चीज जो आपके सामने बनकर आई है, इसको ही हम H3O+ या हाइड्रोनियम आयन कह रहे हैं. तो इस तरह से मैंने आपके सामने वाटर, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन का डिफरेंस समझाया. ऐसा क्यों किया हमने? नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस. लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसिड्स एंड बेसिस फर्स्ट. सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज Arrhenius. Okay, the name of the scientist is Arrhenius, who gave the first concept to understand what are acids and what are bases. Actual acids, there are three different concepts. Like in 10th standard, for the introduction, the first concept is what? The Arrhenius concept. Now, what Arrhenius concept says? As per Arrhenius concepts, acids क्या है जरा देखिए. We are comparing acids and bases. As per this concept, on the basis of this concept, any substance is termed as acid. What is an acid? Which dissociates in aqueous solution to give hydronium ion. आप समझ में आया हम क्यों बात कर रहे थे? ओके, वो सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नोन एज एन एसिड. अब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वहां पर पहले से पानी. और हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए चाहिए वाटर के अंदर और क्या जुड़ना चाहिए? अभी देखा आपने पीछे, बताइए वाटर में क्या जुड़ना चाहिए? ठीक है, वाटर में जुड़ना चाहिए
हाइड्रोजन आयन, ये देखा हमने, वी सी कि हमने हाइड्रोजन आयन को वाटर में एसोसिएट करके ही तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया है। कैन यू सी दैट? यहां से हमने हाइड्रोजन आयन जब वाटर को दिया तभी तो ये हाइड्रोनियम आयन बना। बस दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। ये अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर वो कंपाउंड एसिड है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, और ऐसा करने के लिए क्या है, पानी तो पहले से प्रेजेंट है। इसका मतलब एसिड वो है जो ब्रेक होके अपने हाइड्रोजन आयन को वाटर को देगा और जिससे वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड वो है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में अपने में से अपने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में डोनेट करेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन की फॉर्म में डोनेट करेगा, प्रोटॉन की फॉर्म में डोनेट करेगा, और जिससे ये ए क्या है उसका रेडिकल पार्ट, ये रेडिकल है, वो ए माइनस ये सेपरेट हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। एक एग्जांपल देते हैं, उससे समझ में आएगा। HCl, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, ये है HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब ये वाटर में मिलेगा, विच इज वॉट, लिक्विड, वाटर इज वॉट, लिक्विड। अब ये जब इसमें डिसॉल्व हो गया तब हम इसे एक्वस कह सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अपने में से हाइड्रोजन आयन सेपरेट नहीं करता, नेवर। लेकिन वाटर में जाने के बाद, क्योंकि वाटर इस हाइड्रोजन आयन को सहारा दे सकता है, जो ये लूज करेगा तो ये अपना हाइड्रोजन लूज करता है, तो ये अपने हाइड्रोजन आयन को लूज करके इसे देगा, जिससे यहां पर बनेगा हाइड्रोनियम आयन। अभी क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है और वाटर को हाइड्रोजन आयन देने के बाद अब यहां क्या बचा, दिस इज क्लोराइड आयन, एक्वस। इसीलिए HCl क्या है, अब एसिड। तो जब तक मैं HCl गैस लिख रहा हूं, HCl गैस, तब तक ये एसिड नहीं है। यू कैन नॉट कॉल इट एन एसिड। एसिड होने की शर्त ये है, पहली शर्त कि पानी होना जरूरी है, वाटर। क्योंकि इसको क्या है, इस HCl को हाइड्रोजन आयन डोनेट करना है, और ये हाइड्रोजन आयन तब डोनेट करेगा जब उस हाइड्रोजन आयन को लेने वाला कोई हो, और वो लेने वाला कौन है, वाटर, जिसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर, इसलिए वो लेता है। इसलिए वाटर की प्रेजेंस जरूरी बताई गई है पर, ये वाटर जो बताया गया जरूरी वो इसलिए। तो अब अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर वो कंपाउंड एक एसिड है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन डोनेट करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ओके, और बेस कौन है, लेट्स सी, बेस कौन है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, अगेन वाटर की जरूरत है, टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करता है, हालांकि ये हाइड्रोक्सिल आयन किसी से एसोसिएट नहीं होते पर, ठीक है ना। तो BOH इज व्हाट, इट्स अ बेस, लेकिन शर्त वही है, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉलिड नहीं। और ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में अपना पॉजिटिव आयन डोनेट करने के बाद ये हाइड्रोक्सिल आयन, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्रोक्सिल। देखिए कितनी टर्म्स आ गई, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल आयन इज ओएच। लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऐसी पैलेट्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जो आपके सामने लिखा है, लेकिन ये ऐसा कब करेगा, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में आ जाए। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बना, उस पानी में इट विल लूज सोडियम आयन और देयर बाय हाइड्रोक्सिल आयन विल बी लॉस्ट, गिवन। ये कॉमन सेंस की बात है कि ये हाइड्रोक्सिल आयन अगर पानी में एचायंस होंगे तो उनसे जुड़ जाएंगे, या जो सोडियम आयन है वो पानी में जाके किसी के साथ एसोसिएट होगा नेगेटिव चार्ज के साथ, ये दूसरी बात है, ये आप धीरे धीरे और समझ जाएंगे। तो क्या आपको एसिड और बेस का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर वो कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव कर सकता है अरेनियस के हिसाब से, एसिड की तरह से वो बिहेव कर सकता है, शर्त यह है कि उसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंस होनी चाहिए, नंबर 1। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंस तो बहुतों के पास होती है। हाइड्रोजन प्रेजेंस होने के बाद उसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में लूज करना आना चाहिए, और उससे भी ज्यादा ये हाइड्रोजन पानी में एसोसिएट होकर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी तब तक आप उसे एसिड नहीं कह सकते। रिपीट,
हर वो सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन है, केवल इतना ही कहना एसिड नहीं है। आप देखिए मीथेन CH4 हाइड्रोजन है, लेकिन ये अपना हाइड्रोजन लूज नहीं करेगी, ये एसिड नहीं है। दूसरी बात, हाइड्रोजन होके हाइड्रोजन लूज करना नहीं है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में लूज करना है, और वो हाइड्रोजन आयन पानी में जुड़ना चाहिए, यानी वाटर जरूरी है, तब जाके एसिड बनेगा। सुन कहता है इसने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट क्यों दिया? क्योंकि एग्जैक्टली वाटर में एसिड्स इसी तरह से बिहेव करते हैं और उसके बिना वो ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज अ मस्ट। एनीवेज, अब हम कुछ और इंफॉर्मेशन लेते हैं जो एसिड्स के बारे में अरेनियस कॉन्सेप्ट के अलावा शायद आपने सुनी हो लेकिन आपको नहीं पता हो। लेट्स से ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज के एसिड आ कहां से रहे हैं। एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है विच कंटेन्स कार्बन। कार्बन बेसिक फ्रेमवर्क कार्बन का होता है, कार्बन फ्रेमवर्क जिसमें होता है। सिर्फ कार्बन होना जरूरी नहीं है, आपके सिलेबस में चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक वर्ल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझाने का एक तरीका है, तो हम उसको वहां पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। आई डोंट नो आपने ये नाम सुना है, ये देखा है। दिस इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड। अगर आपने मेरा पहला टॉपिक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फॉर्मेट, ये फॉर्मिक एसिड क्या है। ठीक इसी तरह से क्या आपने देखा है, दिस इज CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड, दे हैव दैट कार्बन फ्रेमवर्क, बेसिक कार्बन फ्रेमवर्क। नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड्स लिविंग वर्ल्ड में होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, वी कॉल देम मिनरल एसिड्स। मोस्टली मिनरल्स में, सॉइल में, रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, ये उनसे मिलते हैं, नॉन लिविंग वर्ल्ड से मिलते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक नाइट्रिक एसिड, लाइक फॉस्फोरिक एसिड एंड सो ऑन। They don't have any carbon framework, in the carbon framework nahi. Is this okay? So one more difference between acid and the classification of acid, that is acids could be organic, carbon containing, and inorganic, carbon lacking, carbon framework lacking. Base में ऐसा कुछ भी नहीं, so not applicable for the bases. Na stands for not applicable. Bases organic और inorganic types के नहीं होते, they cannot be classified like this. Okay? So I hope आपको Arrhenius concept और एसिड्स के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिली। लेट्स प्रोसीड फर्दर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय एन एसिड, दे कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोबेसिक। नाउ दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग और just giving out hydrogen ions, how many hydrogen ions per molecule are given out, this is known as the basicity of an acid. अब इसको basicity क्यों कहा है अभी हम 5 मिनट में समझेंगे इसको, लेकिन पहले टर्म क्या है वो देखिए। I repeat, every acid loses hydrogen ion. Is this okay? Every acid loses hydrogen ion, अभी जो हमने बात की थी। पर मॉलिक्यूल वो कितने हाइड्रोजन आयंस लूज कर रहा है उसे उस एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। अगर वो एक ही हाइड्रोजन आयन लूज कर रहा है देन वी कॉल इट मोनोबेसिक। अगर वो 2 हाइड्रोजन आयन लूज कर रहा है वी कॉल इट डायबेसिक। अगर वो 3 हाइड्रोजन लूज कर रहा है वी कॉल इट ट्राइबेसिक। सो मोनो, डाई और ट्राइबेसिक एसिड्स हो सकते हैं। मोनोबेसिक एसिड का एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है HCl। डायबेसिक का सबसे सिंपल एग्जांपल है H2SO4 और ट्राइबेसिक का सबसे सिंपल एग्जांपल है H3PO4, namely hydrochloric acid, sulfuric acid and phosphoric acid. सुन के अच्छा ये तो बहुत आसान है, जितने हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं, जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं वही उसी हिसाब से हो जाएगा। नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल भी नहीं। हर एसिड में जितने हाइड्रोजन दिखते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो डिस्प्लेस हो सकते हो, इस चीज को ध्यान रखें। डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन का मतलब है कि जब वो वाटर में जाके आयोनाइज होता है, अपने हाइड्रोजन आयंस छोड़ता है, तो पर मॉलिक्यूल वो ऐसे कितने आयंस लूज कर सकता है। ओके, टेक वन एग्जांपल। दिस इज व्हाट, एसिटिक एसिड। ओके, अब इसकी बेसिसिटी बताइए आप, व्हाट इज इट्स बेसिसिटी, व्हाट इज इट्स बेसिसिटी। स्टूडेंट से 3 4, बिल्कुल गलत। जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो बेसिसिटी नहीं।
ये आयनाइज होने के बाद कौन सा आयन बनाता है, याद कीजिए लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है CH3COO माइनस एसीटेट आयन और H आयन, एक ही तो हाइड्रोजन आयन गया। तो क्योंकि ये सिंगल हाइड्रोजन आयन यूज कर रहा है, ये एक मोनो बेसिक एसिड है। हालांकि स्टूडेंट कहता है कि बेसिक वर्ड क्यों आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, एसिड किससे रिएक्ट करता है। अगर जनरल बात देखी जाए, एसिड अगर हाइड्रोजन आयन लूज कर रहा है तो वो बेस से मिलने वाले हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन जो एसिड्स हैं वो बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, ये बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो एसिड्स का बेस के साथ इंटरेक्शन किस तरह से है, या हर मॉलिक्यूल एसिड का कितने बेस के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए ये टर्म आपके सामने ली गई है जिसका नाम है बेसिसिटी। तो जैसे एसिड की बेसिसिटी होती है वैसे बेस की एसिडिटी हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको मोनोबेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक एसिड्स का मतलब समझ में आया होगा। ओके, आई रिपीट, हर एसिड हाइड्रोजन आयन लूज करता है। एक बात, पर मॉलिक्यूल उसने जितने हाइड्रोजन आयन लूज किए हैं उसे उसकी बेसिसिटी कहते हैं, यानी एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज अ बेस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आप खुद देखिए, यहां पर ये डाई बेसिक का मतलब है H2SO4 के लिए, अगर डाई बेसिक लिखा है तो डाई बेसिक का मतलब है कि दो हाइड्रोजन आयन लूज करेगा तो ये दो हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज डाई बेसिक। ओके, खैर इसी तरह से ट्राई बेसिक, और शर्त क्या थी ये भी ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन लिखा होने का मतलब वो एसिडिटी नहीं है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर में उसकी बेसिसिटी नहीं है। कितने हाइड्रोजन है इससे मतलब नहीं, कितने हाइड्रोजन वो आयोनाइजेशन के समय लूज कर सकता है, जैसा मैंने आपको एसिटिक एसिड के केस में समझाया। ओके ओके, इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज OH आयन, produced by a base, that's what we call its acidity. Bases can be classified as monoacidic base, diacidic base and triacidic bases. अब मोनोएसिडिक का मतलब हो गया कि which can give out only one hydroxyl ion per molecule, NaOH. The one which can give two hydroxyl ion per molecule, so it says now I can give you an answer, magnesium hydroxide, MgOH whole twice. It can give out twice. And 3, so again I have an example, that is aluminium hydroxide, AlOH whole thrice. तो जैसे एसिड की बेसिसिटी है वैसे बेसिस की एसिडिटी है। इज दिस ओके? आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को कि एसिड और बेस के बीच में एक तीसरा डिफरेंस क्या है। ओके, नाउ फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ concentration acids can be classified as concentrated or dilute acid. एसिड्स को एसिड शो करने के लिए क्या जरूरी है? एसिड्स को एसिड शो करने के लिए बहुत जरूरी है वाटर। अब उस एसिड में कितना पानी मिला हुआ है दैट डिसाइड्स कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। मोर एसिड लेस वाटर, वी कॉल इट कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है मोर एसिड लेस वाटर, लेस वाटर। डाइल्यूट का मतलब है मोर वाटर लेस एसिड। वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 98% सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब केवल इसमें 2% पानी है, इट्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। बट व्हेन आई से आई हैव 2% सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट मीन्स इसमें 98% वाटर है, इट इज डाइल्यूट। सो व्हाट मेक्स एन एसिड डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन। बिकॉज एसिड बनाने के लिए आपको एक्वा सॉल्यूशन बनाना, और ये एक्वा सॉल्यूशन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में बनेगी, अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर पे बनेगी। So that makes an acid concentrated or dilute. In the same fashion, a base can be concentrated or dilute depending upon how much water is present. Because base के लिए भी क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। तो concentrated base का मतलब मान लीजिए मेरे पास है 90% sodium hydroxide, only 10% water. And if I say I have 20% sodium hydroxide, that's what we call a dilute one. Student says अगर 50-50% हुआ, वो भी डाइल्यूशन है, लेकिन कंपैरेटिवली किसके डाइल्यूट है? अगर मैं 50% वाले सैंपल को 60% वाले सैंपल के साथ कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली 50% वाला डाइल्यूट है। तो दिस इज अ कंपैरेटिव फिनोमेना। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मैं तो बिल्कुल 50% में हूं, बताओ डाइल्यूट है कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मैं कहूंगा कि हम इसे कंपेयर किससे कर रहे हैं। तो दैट कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट।
Okay, on the basis of degree, third thing, on the basis of degree of ionization, acids can be classified as strong or weak. Now this is something very important, इसको समझना जरूरी। हमने हमारे फर्स्ट एपिसोड में जब हम इसकी इस चैप्टर की फर्स्ट इनिशियल स्टेज की बात कर रहे थे, तो अरेनियस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि एसिड वाटर में जाके डिसोसिएट होता है। ओके, अब इसे समझिए, दिस इज लिटिल ट्रिकी। मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है, सपोज मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और इस HCl को मैंने वाटर में मिलाया है। ये गैस था, लेकिन पानी मिलने के साथ में एक्वस हो गया, लिक्विड, एंड दिस फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन एंड देन इट फॉर्म्स क्लोराइड आयन, दैट इज एक्वस। ओके, मान लीजिए मेरे पास इसके 100 मॉलिक्यूल्स है। अगर ये 100 मॉलिक्यूल पूरी तरह से अपने प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाए, टूट गए, ब्रेक हो गए, डिसोसिएट हो गए, एक भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल नहीं बचा, देन आई कॉल इट व्हाट? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि कोई एसिड कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन आयन कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हर मॉलिक्यूल इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करे। हर मॉलिक्यूल क्या करता है? अपने में से हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है। 100 लिए 100 ने कर दिया, 1000 लिए 1000 ने, 10⁻20 मॉलिक्यूल्स लिए तो 10⁻20 हाइड्रोजन आयंस आ गए, सबने अपने अपने हाइड्रोजन, यानी हर मॉलिक्यूल अगर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन वी कॉल इट व्हाट? स्ट्रॉन्ग। तो कहता है वीक का क्या मतलब हुआ? वीक का मतलब ये है कि आपने जितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो सारे ऐसा नहीं कर पा रहे। तो कहता है ये कैसे पॉसिबल है कि किस मॉलिक्यूल को पता कि मुझे हाइड्रोजन आयन लूज करने, किसको नहीं पता कि मुझे नहीं करने। नाउ दिस इज ट्रिकी, इसे समझिए। अब देखिए हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्यों पढ़ी थी स्टार्टिंग में, आज आपको समझ में आएगा। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, आगे हालांकि सब आएंगी चीजें। दिस इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, मैंने वाटर ले लिया, पानी में मिला लिया, एंड देन आई एम सेइंग ये डिसोसिएट हो रहा है। सी द डिफरेंस, मैंने यहां पर जो रिएक्शन का साइन लिया है और ये रिएक्शन, दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहां जाके इसने अपने में से कार्बोनेट आयन रिलीज किया और 2 हाइड्रोजन आयन, ऑब्वियसली पानी होगा तो वाटर के साथ मिलके क्या बनाएंगे? 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। तो मैं यहां ट्वाइस लगा देता हूं, और ये सुन कहता है तो मतलब समझिए क्या है? मतलब ये है कि कार्बोनिक एसिड अगर हाइड्रोनियम आयन में और कार्बोनेट आयन में ब्रेक हो रहा है, रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, इसका मतलब कुछ हाइड्रोनियम आयन और कार्बोनेट आयन वापस से यहां आ जाएंगे। इसका मतलब अगर मैंने यहां पर इस जगह पर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए थे, 100 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए थे, और 100 में से सारे मॉलिक्यूल इसमें ब्रेक हो गए, और बाई चांस रिवर्स यहां पर 20 मॉलिक्यूल्स फिर से रिवर्स हो गए, ब्रेक रिवर्स यानी वापस से कंबाइन हो गए, रिवर्सल रिएक्शन हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे कुछ ना कुछ जो है वो यहां पर कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड, अनआयनाइज दिखाई देंगे। इसलिए मैं उसे क्या कहूंगा? वीक। आई एम सॉरी, वीक का मतलब ये नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं, वीक का मतलब है कि मॉलिक्यूल तो सारे डिसोसिएट हुए, लेकिन कुछ गद्दार है वो वापस आ गए। टू अंडरस्टैंड इन अ फनी वे कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वापस से एसोसिएट हो गए, और एसोसिएट हो गए उन्होंने फिर से एसिड बना दिया। ऐसा क्यों हुआ ये हम आगे समझेंगे फॉर श्योर। लेकिन किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक केवल ये चीज बनाती है कि वो एसिड कितना आयनाइज हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा 100% आयनाइज होता है, 100% आयनाइज होगा, यानी जितने मॉलिक्यूल लिए थे सारे आयनाइज हो जाएंगे, जबकि वीक एसिड लेस देन 100%, कभी भी 100 नहीं होगा, 90, 40, 50, 20, लेस देन 100% आयनाइज होता है, वो कभी पूरा आयनाइज हो ही नहीं सकता। क्योंकि तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन आयनाइज होगा कौन नहीं होगा? फॉर श्योर आपको अभी नहीं पता लग सकता, लेकिन जैसे जैसे आपका नॉलेज पूल आगे बढ़ेगा, यू विल कम टू नो कि विच एसिड कुड बी अ स्ट्रॉन्ग वन एंड विच एसिड कुड बी अ वीक वन। And the same thing implies for a base, that is what? Again, degree of ionization. Though you don't know, but we can give you examples right now. Like the strong base is one which goes
undergoes 100% ionization, which ionizes 100%, like sodium hydroxide in its aqueous solution ionizes completely to give sodium ion aqueous and hydroxyl ion aqueous. 100% ionization. Reaction कैसी है? Irreversible, one way reaction. But if I say a weak base, I am taking the example of this. Do you know what it is? कोई स्टूडेंट बता सकता है? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आ गई. So this is what this is: ammonium, not aluminium. This is ammonium hydroxide. This is ammonium hydroxide. और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर रिवर्सिबल साइन लगा रहा हूं. दैट मीन्स इट अंडरगोज इनकम्प्लीट आयनाइजेशन. ये ब्रेक होगा पूरा, तो ब्रेक होके क्या बनाएगा? अमोनियम आयन एक्वस और हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस ये बनेंगे. लेकिन कुछ गद्दार अगेन ये वापस से इनमें से जुड़ के रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड, और कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे. तो दिस इज लेस देन 100% आयनाइजेशन एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट? वीक बेस. तो आपको एसिड और बेसिस के लिए क्या क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि एसिड और बेस एग्जैक्टली है क्या अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? जो हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट कर दे. देखिए हमें एक्वस सॉल्यूशन अरेनियस कॉन्सेप्ट में समझ में आया क्या है, इसको देख के एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. हमें ये भी समझ में आया बेस क्या है. हमें ये समझ में आया कि एसिड्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कैसे हैं, कार्बन फ्रेमवर्क, जबकि बेस में ऐसा कुछ नहीं है. वी अंडरस्टूड दैट कि एसिड्स जो हैं और बेसिस जो हैं वो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के हिसाब से कैसे अपनी बेसिसिटी और एसिडिटी रिस्पेक्टिवली डिसाइड करते हैं. ध्यान रखें, बेस की एसिडिटी है और एसिड की बेसिसिटी है. मोनो, डाई और ट्राई बेसिक एसिड एंड मोनो, डाई और ट्राई एसिडिक बेसिस. हमने कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स वाटर की प्रेजेंस के बिहाफ पे समझा, और हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बिहाफ पे ये समझा कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक है. इज दिस ओके? एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि हमें अगर एसिड और बेसिस को समझना है तो ये ध्यान रखिए, ऑल एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन आयन. मैंने क्या कहा? एसिड होने के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं, उन्हें हाइड्रोजन आयन रिलीज करना जरूरी, वो भी कहाँ? अपने एक्वस सॉल्यूशन. सो दिस इज मस्ट. ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ ये एक्वस सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है. दूसरा, एक्वस सॉल्यूशन में ये रिलीज करने के बाद the separation of hydrogen ion from an acid molecule cannot occur in absence of water. क्योंकि इस हाइड्रोजन आयन को, ये जो लूज हुआ है हाइड्रोजन आयन, इस हाइड्रोजन आयन को सहारा कौन देता है? वाटर देता है. और इसी से क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है. तो इसलिए पानी की प्रेजेंस बहुत बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से hence acids show acidic character only in presence of water. This one should never forget. As acids and bases dissociates into ions, they conduct electricity. This is something very very important. Note, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए केवल दो ही चीज जरूरी होती है, या तो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और या फिर होते हैं फ्री आयन, मोबाइल आयन जरूरी है. तो जैसा क्लियर इंडिकेशन है कि एसिड्स एंड बेसेस पानी में जाने के बाद क्या हो रहे हैं? डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्री आयंस हो रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्शन करेंगे. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन द रॉ फॉर्म. एज डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस अकर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज. आप इस चीज को ध्यान रखें कि आप एसिड और बेस में जब पानी मिलाएंगे, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, डाइल्यूशन पानी मिलाने से एसिड और बेस में जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हो या फिर हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? डिक्रीज होती रहती है. बिकॉज यू मेक देम मोर एंड मोर डाइल्यूट. पानी मिलाते जाएंगे, पानी मिलाते, एसिड तो उतना ही है, पानी मिलाने से उनसे मिलने वाले हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं, तो उनका इंपैक्ट रिड्यूस होने लगता है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम, ठीक है, कि वो डाइल्यूट हो गए, तो उनका असर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि एसिड्स और बेसिस को स्ट्रॉन्ग और वीक कौन बनाता है, जो अभी हमने देखा. ठीक है, तो मैंने जैसे आपको समझाया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं विच कंप्लीटली आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. जैसा हमने एग्जांपल लिया था, दैट इज HCl एक्वस. ये इररिवर्सिबल रिएक्शन से हाइड्रोनियम आयन एक्वस और क्लोराइड आयन बना रहा है एक्वस.
और इसी तरह से बेस में हमने एग्जांपल लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, जो इरिवर्सिबली फॉर्म कर रहा था सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस. So in this case, this is an irreversible reaction. Whereas in weak acid and weak acid में we took the example of acetic acid और carbonic acid, हम कुछ भी ले सकते हैं. Acetic acid aqueous which undergoes reversible ionization to form acetate ion and hydronium ion. मैं यहाँ पानी नहीं लिख रहा हूँ, assume, क्योंकि aqueous लिख दिया है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पानी है aqueous. And in the same way, ammonium hydroxide, that's the one example we took just now, and it undergoes a reversible ionization to produce ammonium ion aqueous and hydroxyl ion aqueous. So this reversibility is termed as equilibrium. This equilibrium condition is achieved. When achieved, we call that it is a weak acid or a weak base. But when the equilibrium condition is not achieved because a single way, one-sided process, then we call it a strong acid or strong base. I repeat, it's not possible for you right now to understand whether the acid is going to be strong or weak. We can have few examples right now ताकि आपको easy रहे समझने में. Strong acids में हम example ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैं aqueous नहीं लगा रहा हूँ, understood है, it has to be aqueous. Hydrochloric acid, one more example is sulfuric acid, and one more example is nitric acid. ये तीन examples strong acids के हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए. Same way, the sodium hydroxide, again it has to be an aqueous one. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, and barium hydroxide, they are strong acids, strong bases, I'm sorry. The weak acids, we have carbonic acid, H2CO3. This is carbonic acid. There is a difference in carbonic and carbolic. Okay? There is a difference. केवल अल्फाबेट का नहीं, पूरे फॉर्मूले का डिफरेंस है. ठीक है ना. कार्बोलिक ये अलग होता है, कार्बोनिक अलग है. कार्बोलिक एसिड इट्स फिनॉल. कार्बोलिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ फिनॉल. ठीक है ना, हम इसके बारे में बात करेंगे आगे. सो दिस इज कार्बोनिक एसिड. इन द सेम वे वन इज एसिटिक एसिड. पॉपुलरली इसका एक्वस सॉल्यूशन विनेगर होता है, दिस इज एसिटिक एसिड. एंड वन मोर इज hydrocyanic acid, HCN. There is a difference in HCl and HCN. This is a hydrocyanic acid. This is again a weak acid. And weak base we have ammonium hydroxide, that's what we learned just now. Magnesium hydroxide, milk of magnesia, जिसे हम कहते हैं. And I hope you know this aqueous solution is lime water. ठीक है ना. So these are what weak bases. So for now आप ऐसे दो तीन एग्जांपल्स याद रख सकते हैं. तो I guess this introduction part of acid and base is now very clear to you. इन सारी informations के साथ we'll proceed further to understand more about acids and bases in our lesson 2. So catch you in the lesson 2. See you then. Bye bye and enjoy our lectures.